So we are going to start with standard limits today. We're heading standard limits. Standard limits basically हम किसको बोलते हैं जहाँ पे we are going to see a set of formulae. कुछ लिमिट्स ऐसे हैं, हमने प्रीवियस क्लास का अगर मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप करूं, हमने प्रीवियस क्लास में लिमिट चैप्टर में क्या क्या देखा था. तो we saw quite a number of topics, as in I can say we saw various 4 topics. सबसे पहले we saw how do we check the existence of a limit. Then we discussed about the direct substitution method. We talked about method of factorization. And then we talked about method of rationalization. Now in today's class, we are starting with standard limits. Standard limits, once again, it's a technique for simplifying the given complex problem, provided we need to apply a set of formulae. Formula number 1, तो यहाँ पे आप note करेंगे the formulas. उसके बाद I will make you understand what are the important aspects. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus a. The answer is n a to the power n minus 1. So this is n a to the power n minus 1. Exactly the same formula we have to write. Limit x tends to a. X is the variable, a is the limiting parameter. X power n minus a power n, दोनों के पावर में n है, whole divided by x minus a. Denominator में दोनों के पावर में 1 है. Right hand side में, if this is the format of the question, या किसी भी question को हम इस format में सजा पाते हैं, then we can directly write the answer n a to the power n minus 1. N into a to the power n minus 1. What is this a? We will get it from here. What is this n? We will get it from the power. Provided we satisfy the conditions set by this particular thing. कि ऊपर में क्या दोनों का पावर सेम है, नीचे दोनों का पावर 1 है, and all. We'll understand when we take the formula. Questions. Number 2. Limit x tends to 0. Sin x upon x is equals to 1. Similarly, third formula. Limit x tends to 0. Tan x upon x is equals to 1. So this two formula, trigonometric ये जो दो formula है, it is applicable only for sin and tan. They are definitely not applicable for cos, and that is why I am not writing it. तो इसको हम अपने मन से assume नहीं करेंगे कि cos के लिए भी होता होगा. No, definitely it is not applicable for cos, and that is why we are not writing it. So when we have limit x tends to 0, sin x by x, or limit x tends to 0, cos x by x, then only the answer we will directly substitute 1. As in, we don't need to evaluate certain limits. Those limits को हमें evaluate करने की जरूरत नहीं है. Formula number 4. Limit x tends to 0. A to the power x minus 1 whole divided by x. This is equals to log a. Number 5. If it is limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x, the answer will be log e. और हमें पता होना चाहिए log e का वैल्यू 1 होता है in calculus. That is why formula number 5 को हम 1 भी directly substitute कर सकते हैं. So if it is any other constant, a to the power x minus 1 signifies that, e to the power x minus 1 signifies exponential function. And we have just one more formula, that is number 6, which says limit x tends to 0, log 1 plus x whole divided by x is equals to 1. These are the 6 standard limits we have. हमने previous class में जब topics discuss किए थे कि हम limits में क्या-क्या topic देखने वाले हैं, we did see that standard limit was one of the part. Standard limit में हमारे पास ये 6 फॉर्मूले आएंगे, जहाँ पे हर एक फॉर्मूले के बारे में कुछ specific aspects हैं जो हमें समझना है, that we shall understand.
अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो पहले फॉर्मूले में क्या बताया जा रहा है दैट हमारे पास दो पैरामीटर होने चाहिए। पहला पैरामीटर है x, दूसरा है a। x शुड टेंड्स टू a, अच्छी बात है। वही x और a नीचे होने चाहिए, वही x और a ऊपर भी होने चाहिए, लेकिन ऊपर दोनों के पास एक कॉमन पावर होना चाहिए और नीचे में दोनों का पावर 1 होना चाहिए। सो इसी लॉजिक को अगर मैं फ्रेम करूं तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर ऐसा है तो नीचे क्या होना चाहिए, x माइनस 2 होना चाहिए, ऊपर भी क्या होना चाहिए, x माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों का पावर मान लो मैंने अपने मन से 4 दे दिया और दोनों के बीच में माइनस ही चाहिए, दोनों के बीच में माइनस ही चाहिए। न्यूमरेटर में भी माइनस चाहिए, डिनोमिनेटर में भी माइनस चाहिए। सो यू कैन नाउ कोरिलेट दिस एंड दिस। देखो ये कंप्लीट सिनर्जी में है। लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, limit x tends to 2, that x and something should appear in the numerator as well as in the denominator. That x and 2 are in the numerator as well as in denominator. The denominator should have power 1. Both the terms should have power 1. Yes, it is getting satisfied. न्यूमरेटर में कोई भी पावर हो सकता है लेकिन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। यस इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। और दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीच में माइनस साइन होना चाहिए। यस इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। When every single condition of the first standard limit satisfies, we are supposed to put what? The direct answer n. For us, what is n? 4. A. For us, what is a? For us, a is 2. Then to the power n minus 1, 4 minus 1. So 4, 2 to the power 3, answer 32. So ऐसे लिमिट्स को हमें इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट ने हमारा पूरा का पूरा काम सिंप्लीफाई कर दिया। दिस शैल बी टेकन केयर ऑफ। Now pay attention to the second formula. सेकेंड फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट क्या है कि साइन के पास जो एंगल है, जो भी एंगल, मैं 2 और 3 नंबर 2 एंड नंबर 3 आई एम एक्सप्लेनिंग टुगेदर, जो भी एंगल साइन या टैन के पास होगा वो सेम चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर मान लेते हैं साइन के पास एंगल था 2x, तो नीचे भी 2x चाहिए और वही चीज लिमिटिंग पैरामीटर होना चाहिए। सो लिमिट ऑल्सो 2x टेंड्स टू, और 0 ही चाहिए। सो राइट साइड में 0 ही होगा। लिमिटिंग का वैल्यू 0 को ही टेंड करेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना सा है, जो साइन का एंगल होगा वही डिनोमिनेटर होगा और वही लिमिटिंग पैरामीटर होगा। When such is the situation, you can directly put the answer 1. So मैंने यहाँ पे क्या किया, as you can see, मैंने साइन का एंगल 2x रखा, डिनोमिनेटर भी 2x होना चाहिए था, लिमिटिंग पैरामीटर भी 2x है और टेंड्स टू 0 ही चाहिए। यहाँ पे 0 के अलावा कोई अलाउड नहीं है, तो आंसर हमारा 1 होना चाहिए। The same logic is extended to tan also. Let us say I am putting limit tan x square. तो अगर tan के पास एंगल x स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए और x स्क्वायर should tends to 0। अब अभी भी हम आंसर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो साइन या tan का एंगल होगा वही सेम चीज डिनोमिनेटर को बिलोंग करना चाहिए और वही सेम चीज लिमिटिंग पैरामीटर होना चाहिए एंड शुड टेंड्स टू 0 ओनली। Then only you can substitute the answer as 1 directly. No calculation, nothing is required from your end. और पॉइंट नंबर 2 and 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपको नोट करना है that this particular format is not applicable for cos sec, किसी के लिए नहीं, सिर्फ tan और sin के लिए एप्लीकेबल है। कैलकुलस जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे आपको एक चीज नहीं करना है, वो है अपने मन से कुछ भी चीज अज्यूम नहीं करना है। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ सर भूल गए होंगे साइन और कॉस का, साइन और tan का सर ने दे दिया, कॉस का भी होता होगा सर ने नहीं दिया, ये होता होगा अलाउड नहीं है, चाहे हम कैलकुलस का कोई भी टॉपिक दें, बीट डेरिवेटिव, बीट लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस, कुछ भी दे, जो बातें आपको स्क्रीन से डॉक्यूमेंट करवाई जाएगी आपके नोटबुक में वही चीज एग्जिस्ट करता है। आपको अपने मन से अज्यूम कुछ भी नहीं करना होगा। दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। सो अब अगर हम बातें करें फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 की एक साथ, तो फॉर्मूला नंबर 4 और 5 का लॉजिक क्या है? ये a हो या ये e हो, ये कांस्टेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं। सो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट के पावर में जो होगा, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट के पावर में जो होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही शुड टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कांस्टेंट के पावर में जो होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही शुड टेंड्स टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, न्यूमरेटर में -1 भी होना चाहिए। अगर ये है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट a था इसीलिए आंसर हो गया लॉग a, यहाँ कांस्टेंट e था इसीलिए आंसर हो गया लॉग e। मतलब क्लियरली इंडिकेट करता है, अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा होता
लिमिट 4 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, देखो, और x टेंड्स टू 0, ये बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। 4 एक कांस्टेंट है, उसके पावर में x है, नीचे भी x है, और x टेंड्स टू 0 है, -1 भी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लॉग कांस्टेंट, मतलब लॉग ऑफ 4 होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज फॉर्मूला 4 एंड 5 आर सिग्निफाइंग। बस लॉग ई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, कैलकुलस में लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, बिकॉज ये जितना भी हम लॉग की बातें कर रहे हैं दोज आर विद बेस ई। लॉग का रूल है व्हेन द एलिमेंट एंड बेस आर सेम, लॉग वैल्यू विल टेक आंसर एज 1, एंड दैट इज व्हाई log e base e is 1. log a base e is just log a. कैलकुलस में हमें बेस लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि बेस e ही है। यहाँ पे हमने log 4 लिखा है, और यू राइट log 4 बेस e, इट सिग्निफाइज द सेम थिंग, ध्यान रखेंगे। So we are taking 5 questions based on the very first formula, that is this one. इसी फॉर्मूले के ऊपर हम 5 क्वेश्चंस अभी करेंगे, so that the concept becomes more concrete. So I'm writing this here that हमारा फॉर्मूला क्या है? Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n whole upon x minus a. The answer is n a to the power n minus 1. इस फॉर्मूले के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें ऑलरेडी पता है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, जो यहाँ है और जो यहाँ है ये दोनों चीजें ऊपर होनी चाहिए, यही दोनों चीजें नीचे होनी चाहिए, दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, ऊपर में जो टर्म्स है उनका सेम पावर होना चाहिए, नीचे जो टर्म्स है उनके पावर में 1 होना चाहिए। ये सारी बातें हैं, तब ये आंसर होगा। हम पहले वाले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है x टेंड्स टू a, तो हमने नीचे देखा x और a, अच्छी बात है, मैच कर गया। हमने ऊपर देखा तो ऊपर तो मैच नहीं करता है। ऊपर x टू दी पावर 5/2 माइनस a टू दी पावर 5/2 होता तो हमारा काम कितना आसान हो जाता, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है। तो अब डेफिनेटली इसको तो हम मैनिपुलेट कर नहीं सकते, तो वी आर नाउ ट्राइंग टू मैनिपुलेट लिटिल बिट इन द क्वेश्चन। हम अगर x टेंड्स टू a है, कैन आई राइट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2? दैट इज सो ऑब्वियसली, मैथ्स हमें इस चीज का परमिट करता है। हमने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में क्या किया, ऐड कर दिया 2। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर? द न्यूमरेटर रिमेन्स एज सच, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/2। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? कैन आई राइट दिस एज x प्लस 2 माइनस a प्लस 2? मैथमेटिकली हमें देखना ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि एनी हाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल आउट, वी आर रिमेनिंग विद x माइनस a ओनली। मतलब बेसिकली हम x माइनस a को ऐसा लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेप रेडी हुआ है, उस क्वेश्चन को हम वापस एनालाइज करते हैं। लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, मतलब पहला टर्म x प्लस 2, दूसरा टर्म a प्लस 2, x प्लस 2 a प्लस 2, x प्लस 2 a प्लस 2, दैट इज वेरी ओके। दोनों के बीच में माइनस साइन, अच्छी बात है। ऊपर में दोनों के पावर में 5/2 है, अच्छी बात है। नीचे दोनों के पावर में 1 है। नाउ इट इज कंप्लीटली मैचिंग टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। अगर ये जैसे ही मैच हो गया तो हमें आंसर क्या पुट कर देना है? हमें आंसर पुट करना है n। फॉर अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दिस इज द वैल्यू ऑफ n, 5/2, सो 5/2। a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दिस सेकंड पैरामीटर इज कॉल्ड a, सो हमारे लिए a का वैल्यू है a प्लस 2, एंड देन पावर में क्या है? n माइनस 1, सो इट इज 5/2 माइनस 1। सो आंसर हो गया 5/2 इंटू a प्लस 2, इसको कैलकुलेट किए 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिचुएशन क्या है? x इज टेंडिंग टू 1, वेरी गुड। ऊपर x और 1 है, अच्छी बात है। नीचे भी x और 1 है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर में पावर 15, इसके पावर में भी हम 15 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे तो पावर हमें 1 चाहिए था। नीचे का रिक्वायरमेंट क्या है? डिनोमिनेटर शुड हैव पावर 1, लेकिन यहाँ पे नीचे इन्होंने पावर 10 दिया है। सो क्वेश्चन को क्या करेंगे? लेट अस थिंक ऑफ। सो हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1। दिस इज द थिंग। यहाँ पे है हमारे पास x टू दी पावर 15, मैंने इसको लिख लिया -1 टू दी पावर 15, और नीचे है x टू दी पावर 10, मैंने इसको लिख लिया -1 टू दी पावर 10। Now my just one requirement, मैं क्या ऊपर नीचे x minus 1 से डिवाइड कर दूं? What is the problem? See, ऊपर भी x minus 1, नीचे भी x minus 1। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया? दोनों को अपना अपना लिमिट दे दिया। ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट, जो कि फंडामेंटल थ्योरम में हमें बताया गया है कि लिमिट अगर
फ्रैक्शन में है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं. नाउ लेट अस राइट द फंक्शन x पावर 15 minus 1 power 15 whole divided by x minus 1. और नीचे क्या लिखेंगे, x to the power 10 minus 1 to the power 10 whole divided by x minus 1. अब हम एनालाइज करें, न्यूमरेटर देखो, ये x1 x1 दोनों के बीच में माइनस साइन, ऊपर दोनों के पास 15 पावर, नीचे दोनों के पास 1 पावर. मतलब ये ऊपर वाला कंप्लीट स्टैंडर्ड लिमिट में है, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, ऊपर वाले का आंसर होना चाहिए 15, दैट इज n का वैल्यू, a का वैल्यू इज 1, दैट द पावर 15 minus 1. दिस थिंग इज होल डिवाइडेड बाय. लेट अस एनालाइज द नीचे वाला, x tends to 1, x and 1 both are having minus sign, ऊपर के पावर में है 10, नीचे के पावर में है 1. सो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए. तो फिर से क्या करेंगे, नीचे वाले का आंसर क्या होगा, 10 1 to the power 10 minus 1. So this 15 1 to the power anything is 1. This is 10 1 to the power anything is 1. We got the answer as 3/2. That is answer to question number 2, 3/2. So third question is pretty same as question number 1 and 2. थर्ड क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, विच इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, दिस इज x क्यूब माइनस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 क्यूब, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x माइनस 4. अब अगर एनालिसिस हम करें, x इज टेंडिंग टू 4, x and 4, दिस इज ओके, बोथ माइनस साइन, ऊपर में दोनों के पावर 3, नीचे दोनों के पास 1, नो प्रॉब्लम. यहाँ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो n का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4, पावर में 3 minus 1. So this is 3, 4 का स्क्वायर, आंसर is 48. Third one is also finished. Question number 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि they have given us an equation कि इस टाइप के लिमिट का आंसर ऑलरेडी ये है, आपको a का वैल्यू बताना है. So इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 1 के ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से कॉइन किया गया है. लेट अस सी. सो हमने पहले इक्वेशन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power 9 minus a to the power 9 whole upon x minus a is equals to limit x tends to 5, 4 plus x. राइट हैंड साइड पे हमें सिचुएशन देखना है कि ये स्टैंडर्ड लिमिट का सिचुएशन है कि नहीं. x is tending to a, x and a माइनस माइनस, ऊपर दोनों के पास सेम पावर 9, नीचे दोनों के पास 1. तो लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगा, 9 a to the power 9 minus 1. राइट हैंड साइड में इट्स अ डायरेक्ट लिमिट, जहां पे हम x के जगह पे 5 पुट कर देंगे, सो वी गेट 9. सो आवर अपडेटेड इक्वेशन इज 9 a to the power 8 is equals to 9. This 9 and 9 got cancelled. We have a to the power 8 is equals to 1. When we have even power, आंसर हमारा प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है. This is the two values of a. And that is why in the question they have also mentioned values of a. So ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है हमारे पास, और दोनों वैल्यू आंसर हो जाएंगे. क्वेश्चन 5 में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्या चीज मिस हो रहा है, बीच में प्लस. हमें स्टैंडर्ड लिमिट ने कहा है कि बीच में प्लस अलाउड नहीं है, माइनस चाहिए. तो इसको माइनस करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे ऊपर में 8 है, मैंने क्या किया, ऊपर में से 8x क्यूब प्लस 1 है, सो इसको हम लिख सकते हैं 8x क्यूब माइनस ऑफ माइनस 1. हमें सबसे पहले माइनस लेकर आना है, और नीचे में क्या हो गया, 2x माइनस ऑफ माइनस 1. सो दिस इज क्रिएटिंग नो ट्रबल टू अस. नेक्स्ट, लुक एट दिस पार्ट. x का वैल्यू बोल रहा है टेंडिंग टू माइनस हाफ. अगर इस 2 को मैं वहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू टेंडिंग टू माइनस 1, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं. आई एम राइटिंग लिमिट 2x इज टेंडिंग टू माइनस 1. दिस फेलो कैन आई राइट 2x का होल क्यूब, एंड दिस फेलो कैन आई राइट माइनस 1 का होल क्यूब. नीचे में व्हाट डू वी हैव, 2x माइनस ऑफ माइनस 1. ऐसा करने पे हमें क्या बेनिफिट मिला, मैथमेटिकली वी आर करेक्ट, वी डिड नॉट वायलेट और
sacrifice any governing rule of the mathematics? ये 2 वहां जा ही सकता है ऑफ कोर्स, -1 था राइट में, अभी भी है। यहाँ पे प्लस को हमने माइनस माइनस कर लिया, नीचे के प्लस को माइनस माइनस किया, तो एवरीथिंग इज इंटैक्ट। नाउ व्हाट वी गेट टू सी, ऐसा करने पे फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकंड टर्म इज -1, 2x -1, 2x -1, दोनों के बीच में माइनस साइन, अच्छी बात है। ऊपर में दोनों का पावर 3, नीचे में दोनों का पावर 1। सो हमारा जो स्टैंडर्ड लिमिट का रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो आंसर वी कैन डायरेक्टली पुट, आंसर है n, n का मतलब 3, a का मतलब है -1 to the power n -1, that is 3 -1. So we got 3 -1 का square, that is 3. 3 is the answer for question number 5. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं few set of questions, और ये सारे के सारे questions किसको belong कर रहे हैं? They are now belonging to this two formulae, जहाँ पे हमारा standard limit number 2 which says limit x tends to 0, sin x by x, इसका आंसर 1 होगा। और तीसरा फॉर्मूला भी यही था, लिमिट x टेंड्स टू 0, बट नाउ वी हैव tan x by x, इसका आंसर 1 होगा। इसी दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस करके हम बातें करने वाले हैं टू फ्यू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि वी अंडरस्टैंड एवरी इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं वापस नोटेशन डिस्कस करूँ तो नोटेशन कुछ ऐसा था कि साइन के पास जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, और वही एंगल शुड टेंड्स टू 0, 0 ही चाहिए, तब आंसर 1 आएगा, हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली सेम वे, tan के पास जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, और वही एंगल शुड टेंड्स टू 0, तो आंसर हमारा 1 आएगा। इस पर्सपेक्टिव में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज किया। वी गेट टू सी साइन के पास एंगल है 3x, तो नीचे भी 3x होना चाहिए था, यहीं पे लॉजिक बाईपास हो गया, नीचे 5x दे दिया, और वही 3x शुड टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया। मतलब हमें क्वेश्चन में काफी काम करना पड़ेगा, और वो काम हम कैसे करेंगे? नंबर 1 देखो, पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। तुम खुद ही सोचो, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो 3x का वैल्यू भी तो 0 ही होगा। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंड्स टू 0, वी आर राइटिंग 3x टेंड्स टू 0, व्हिच इज टेक्निकली करेक्ट। हम साइन के एंगल को कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइन का एंगल है। नीचे जो है वो एक एल्जेब्रिक टर्म है 5x, सो इस 5x को कैन आई राइट 3x इंटू 5/3। देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, नीचे 5x ही बचा रहेगा। सो आई कैन राइट 5x एज 3x इंटू 5/3, विच इज टेक्निकली वेरी मच करेक्ट। अब विच इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो 5/3 मेरे को दिख रहा है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट बिकम्स 3/5, और कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ गया। लिमिट क्या बचा, 3x टेंड्स टू 0, साइन 3x अपॉन 3x। जो एडजस्टमेंट था वो एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अगर अब हम एनालाइज करें तो साइन का एंगल 3x, नीचे भी 3x, 3x टेंड्स टू 0, ये सारा का सारा फॉर्मूले के अंदर आ गया। दिस इज कंप्लीट पैकेज नंबर 2। सो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया 3/5 इंटू, इसके जगह पे 1 लिखेंगे, सो द फाइनल आंसर इज 3/5। दिस इज हाउ वी टेक केयर ऑफ सच मॉडिफिकेशंस। सो इन द सेम फैशन वी शैल डिस्कस नंबर 7। नंबर 7 में हम सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं कि ये ऊपर नीचे हो गया। साइन को ऊपर होना चाहिए था और नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को नीचे होना चाहिए था, तो लेकिन ये बातें पलट गई। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने फॉर्मेट में रखना है। हम फॉर्मेट में रखने के लिए कहना है राइट ऊपर में 1, एंड ये जो ऊपर का एक्स स्क्वायर था उसको एकदम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। दिस इज सो पॉसिबल इन मैथ्स। इस स्टेप को करने के बाद हमने ऊपर के 1 को 1 रहने दिया और लिमिट को नीचे दे दिया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो पहला काम हमने क्या किया, हमने ऊपर में जो एक्स स्क्वायर था उसको एकदम नीचे शिफ्ट कर दिया, विच इज पॉसिबल एज वी कैन सी। जब ये शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऊपर में 1 है तो इसको लिमिट देने का कोई फायदा नहीं, हमने लिमिट सिर्फ नीचे को दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, साइन का एंगल इज एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, बट द लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो हमें सोचना है अगर x का वैल्यू 0 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये भी 0 के बराबर ही होगा। सो हमने देन एंड देयर इसको एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 कर दिया। नाउ वी कैन सी नीचे वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला। सो इट इज 1/1, आंसर इज 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
Look at question number 8. Number 8 में we can see the two terms tan and sin, लेकिन इनके डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर अवेलेबल करने की कोशिश की। As in tan 8x was there और उसके नीचे sin 2x was there, let it be, और हमने क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा x से डिवाइड करने का फायदा ये है कि हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट्स अलग अलग कर देंगे। सो द फर्स्ट लिमिट बिकम्स, न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of 8x upon x, this thing is whole divided by limit x tends to 0 sin of 2x upon x. So यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमें अभी अपना फोकस रखना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में फोकस हमारा कुछ ऐसा है कि उन्होंने बोला था एंगल क्या है 8x, लेकिन नीचे सिर्फ x है, तो नीचे x तो चलेगा नहीं। तो नीचे 8x करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 8 यहाँ रखा और इसको 8 एक यहाँ रखा, विच इज डेफिनेटली करेक्ट। 8 और 8 कैंसिल होगा, क्वेश्चन वापस घूम फिर के वही आ जाएगा। सो हमने नीचे 8x करने के लिए नीचे एक 8 मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक 8 मल्टीप्लाई किया, और ये जो लिमिट था इसको 8x टेंड्स टू 0 कर दिया। इन द सेम लॉजिक अब हमारा फोकस नीचे आ जाएगा। नीचे हम क्या देख पा रहे हैं, एंगल है 2x, हमें यहाँ पे 2x बनाना है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट जो x टेंड्स टू 0 था उसको अब 2x टेंड्स टू 0 कर देंगे। We will just finally analyze tan के साथ एंगल 8x, नीचे 8x, 8x टेंड्स टू 0, sin के साथ एंगल 2x, नीचे 2x, 2x टेंड्स टू 0. So we know this is one formula and this is yet another formula. So इनके formula substitute करेंगे, this is 1 into 8, this is 1 into 2, final answer is 4. Question number 8 finished. So once again, question number 9 में देखेंगे, we have one sine term here, another sine term here, नीचे भी sine है। So पहला काम है कि x को बुलाना, हमने क्या किया, ऊपर और नीचे x से डिवाइड किया। पहले फंक्शन लिख लेते हैं जैसा था फंक्शन, द फंक्शन इज sin 5x minus sin 3x and नीचे it is sin x. The very first step I'm doing, that is I'm dividing both numerator and denominator with an x. ऐसा करने के बाद let us separate the limits. So it is limit x tends to 0 sin 5x by x minus limit x tends to 0 sin 3x by x whole divided by limit x tends to 0 sin x by x. Understand this step? sin 5x by x, ये sin 5x with this x एक लिमिट हो गया माइनस साइन, फिर ये sin 3x by x दूसरा लिमिट हो गया, और नीचे का तो तीसरा लिमिट है ही। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ चाहिए। पहला फोकस विल बी ऑन द वेरी फर्स्ट लिमिट। साइन के पास जो एंगल है वो 5 है, हमें नीचे 5 करना है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और लिमिट को भी 5x में कन्वर्ट कर देना है। इन द सेम लॉजिक दूसरे फोकस पे चलेंगे, तो ऊपर साइन के पास एंगल 3x है, हमें 3 प्रोवाइड करना है, यहाँ पे भी 3 देना होगा और लिमिट भी 3x के साथ चेंज हो गया। एंड if we shift the focus to the denominator now, it is already in the standard form, no modification required. Now, to our surprise, what we see that this is in the formula now. This is in the formula now. और नीचे वाला ऑलरेडी फॉर्मेट में ही था। फॉर्मेट का आंसर होगा 1. So this is 1 multiplied by 5 minus 1 multiplied by 3 divided by 1. So answer is 2. 9th question.
क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि नीचे का डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, एज इन बीच के माइनस के साथ। पहला लिमिट मैंने दिया 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, माइनस दूसरा लिमिट मैंने दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 sin x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। सो पहले मैंने इस फंक्शन को अलग कर दिया, दूसरा माइनस के बाद मैंने इस फंक्शन को अलग कर दिया, और दोनों को अपना अपना लिमिट मैंने दे दिया। Now this 3 and 3 got cancelled. What I have is limit x tends to 0 sin square x by x square। क्या है इसका मतलब हम देखेंगे, और यहाँ हम देख पा रहे हैं this 2 and 3 both are constant, they will try to come out of the limit part, so it is limit x tends to 0 sin x square upon x square। We need to understand the difference between sin square x and sin x square here। sin square x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर, और sin x स्क्वायर का मतलब sin x स्क्वायर ही होता है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो पहले वाले का एंगल क्या है, x, और दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले का एंगल है x स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस, वी शैल अंडरस्टैंड। लिमिट हमें क्या चीज का परमिशन देता है, लिमिट हमें बोलता है कि अगर आपके पास ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, आप लिमिट को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझोगे इस बात को, समथिंग न्यू वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब हमें क्या परमिसिबल है, हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर sin x नीचे x एज वी कैन सी, और लिमिट को हमने अंदर डाल दिया और होल स्क्वायर पुट कर दिया। दिस इज व्हाट इज अलाउड इन लिमिट। So when the function is in the whole square form, you can put the limit inside and put the whole square outside the limit also. Look at the second format. It is already minus 2 by 3 outside, and this is limit x tends to 0 sin x square by x square। अगर एनालाइज करते हैं, साइन के पास एंगल है x स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर, मतलब लिमिट भी में भी x स्क्वायर ही होना चाहिए, जो कि हमने पुट कर दिया। नाउ दिस इज a formula, so it is 1 square minus 2 by 3 into, this is once again the format 1, so 1 minus 2 by 3, answer is 1 by 3. That is question number 10. So before I discuss question number 11 and 13, I will discuss question number 12 with you. 12th question में हम क्या देख पा रहे हैं, that हमें जो question दिया है वो question कुछ ऐसा है that sin x डिग्री बाई x, ऊपर में x डिग्री है नीचे x है, डेफिनेटली दे आर नॉट सेम। दिस इज x डिग्री एंड दिस इज x, एंड दिस इज x टेंड्स टू 0। यहाँ पे x डिग्री टेंड्स टू 0, नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट हमें दोनों, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ऊपर जो होगा वही नीचे होना चाहिए। सो व्हाट डू वी नो, वी नो x डिग्री, या वी नो दिस थिंग, वी नो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मैं रिवर्स फैशन में लिखूं तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, which clearly implies 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। ये कन्वर्जन हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है ट्रिग्नोमेट्री। हमने बोला है x डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू पाई बाई 180 रेडियन, बिकॉज वॉट एवर फॉर्मूला वी आर सीइंग दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेडियन। तो हमने क्या किया, हमने अपने x डिग्री को कन्वर्ट कर लिया इन रेडियन, वो जाकर के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी आर राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, instead of x degree I am writing x into pi by 180, that's it। और नीचे में कौन है, हमारे पास x है। अब हमें क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है। साइन का एंगल है पाई x by 180, लेकिन नीचे सिर्फ x है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, ये चलेगा नहीं, हमें एडजस्टमेंट करना है। तो हमने एडजस्टमेंट कुछ ऐसा किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन पाई x by 180, और नीचे में है हमारे पास x। इस x को हमें चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, पाई बाई 180 से नीचे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180 से ऊपर मल्टीप्लाई किया,
और लॉजिकली सोचो अगर x का वैल्यू 0 है तो हम पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर 0 ही रहेगा। तो हमारा लिमिट भी हो गया पाई एक्स बाई 180। ऐसा करके फायदा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। एंगल इज पाई एक्स बाई 180, नीचे भी पाई एक्स बाई 180 और लिमिट वैल्यू ऑल्सो पाई एक्स बाई 180 टेंडिंग टू 0। नाउ दिस कंप्लीट फॉर्मेट इज 1 and this pi by 180, so हमारा फाइनल आंसर हो गया pi by 180। this is the answer for question number। so we are pending with this two question number 11 and 13। as I said both the questions demand a special formula of trigonometry। वो trigonometry का जो फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चंस में यूज होगा वो टॉपिक अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला बिकॉज ये जो फॉर्मूला अभी आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी वाइटल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे फॉर्मूला आपको सिर्फ याद नहीं रखना है बल्कि समझना भी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टॉपिक का नाम है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। A very important class of formula you are going to see because ये ऐसा class of formula है जो कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होगा। कैलकुलस नॉट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कैलकुलस में ज्यादा यूज होने वाले हैं दैट इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। फॉर्मूले काफी है, मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा अभी। फॉर्मूला नंबर 1 sin 2x, the answer is 2 sin x cos x। after noting down the formula you leave sufficient gap 4-5 लाइन का बिकॉज हम कुछ बातें करने वाले हैं पहले फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x, इसका आंसर होता है 2 cos स्क्वायर x। एंड वंस अगेन यू लीव 4-5 लाइन का गैप फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज 1 माइनस cos 2x, जिसका आंसर होता है 2 sin स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर को काफी अच्छे से गवर्न करते हैं। द चैप्टर नेम इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। यहाँ पे आपको क्या नोट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन का जो एंगल था वो 2x था, लेकिन राइट साइड में एंगल कितना हो गया x एंड x। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला नंबर 2 cos का जो एंगल था वो 2x था, राइट साइड में एंगल क्या हो गया x। थर्ड फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में जो cos का एंगल था वो 2x था, राइट साइड में फिर से एंगल हो गया x। मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक है एंगल इज गेटिंग हाफ। ये 2x आधा इसको मिल गया और आधा इसको मिल गया। यहाँ पे जो 2x था ये आधा हो गया, ये जो 2x था ये आधा हो गया। इसीलिए टॉपिक का नाम दिया है मल्टीपल सब मल्टीपल, जहां पे आप एंगल और उसके हाफ द एंगल के बारे में कोई रिलेशनशिप निकालते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अब आपको एक और चीज क्या समझना है कि अगर सिर्फ साइन है लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 sin cos आ जाएगा और आधा आधा एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉजिक क्या बताया मैंने, अगर साइन विद सम एंगल इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, you want to segregate into sin and cos, you just distribute the angle half to equal both of the trigonometric ratio, provided you place a coefficient of 2 in front of this। as in अगर हमारे पास सिचुएशन sin 4x का होता या सिचुएशन sin 8x का होता या सिचुएशन sin 3x का होता या सिचुएशन सिर्फ sin x का होता, आंसर क्या आता 2 sin cos 4x का आधा एंगल 2x, cos को भी 2x। sin 8x फिर से 2 sin cos रेडी है, 8x का आधा एंगल 4x और 4x। sin 3x नो प्रॉब्लम, फिर से 2 sin और cos रेडी है, 3x का आधा एंगल होता है 3x/2 और ये सेम एंगल cos को भी मिल जाएगा 3x/2। sin x सिर्फ sin है, एंगल x है, नो प्रॉब्लम, 2 sin और cos को लेकर के हम रेडी हैं। x का आधा एंगल होता है x/2 और फिर से x का आधा एंगल होता है x/2। As you can now see, one formula gave us multiple formulae। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, इसीलिए आपको फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना, आपको फॉर्मूला समझना भी है। दिस इज वन वेरी मच की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, दैट यू शुड कोरिलेट द फॉर्मूला। लेफ्ट साइड में एंगल 4x था तो दोनों को 2x मिला, लेफ्ट साइड में 3x था तो 3x/2 मिला, x था तो x/2 मिला। ये तीनों फॉर्मूले आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
You will come across in derivatives, you will come across in class 12 integration, application of derivative, application of integration. हर जगह ये फॉर्मूले हमें दिखने वाले हैं। और चलो इस चैप्टर में तो है ही, जो अभी हम प्रेजेंटली डिस्कस कर रहे हैं। ये सेम लॉजिक अब हम फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 के लिए डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट है, अगर आपके पास 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर फिक्स है, अगर आपके पास 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर फिक्स है। बाकी एंगल का रिलेशन तो देख ही चुके हैं, 2x का आधा चला जाएगा, 2x का आधा चला जाएगा। तो आपको अभी टेम्पलेट क्या याद रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस है तो राइट साइड में 2 कॉस स्क्वायर फिक्स्ड है। हम वेरियस फॉर्मेट लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने लिया 1 प्लस कॉस 4x, उसके बाद मैंने लिया 1 प्लस कॉस x, फिर मैंने ले लिया 1 प्लस कॉस 7x। आई कैन गो फॉर 1 प्लस कॉस 30x, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का तो कोई वो रोल नहीं है। We know they can give us anything. And similarly, यहाँ पे 1 minus cos वाले फॉर्मेट में I can take 1 minus cos 5x. I can go for 1 minus cos 6x. They can ask us 1 minus cos x. They can also ask us 1 minus cos 10x. कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया कि अगर 1 प्लस cos है तो सब में 2 cos स्क्वायर फिक्स हो गया। देखो सारे के सारे फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर फिक्स हो गया। अब क्या बच गया, सिर्फ एंगल बच गया। तो ये 4x, इसका आधा एंगल वहां चला जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ एंगल x था, इसका आधा हो जाएगा तो हो जाएगा x/2। यहाँ 7x, इसका आधा एंगल राइट में जाएगा, इट बिकम्स 7x/2। यहाँ 30x का आधा एंगल 15x, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आ गया 15x। इन द सेम लॉजिक इफ यू एनालाइज द थर्ड वन, फॉर्मेट क्या है 1 माइनस कॉस, सारे के सारे 1 माइनस कॉस, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मेट है 2 साइन स्क्वायर। सो हम सब में सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर लिख करके रेडी रखेंगे। दिस इज 2 साइन स्क्वायर, दिस इज 2 साइन स्क्वायर, एंड लास्ट वन आल्सो 2 साइन स्क्वायर। नाउ वी जस्ट नीड टू फिल द फॉर्मूला। 5x का आधा एंगल राइट में जाएगा, सो दिस इज 5x/2। 6x का आधा एंगल होता है 3x, वो राइट में चला गया। x का आधा एंगल होता है x/2, ये राइट में आ गया। 10x का आधा एंगल होता है 5x, तो राइट साइड में 5x आ गया। दिस आर सम की इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम मल्टीपल सब मल्टीपल, जिसका फॉर्मेट के साथ हमें ये कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं ये भी हमें समझना था। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूले। We will now see how this formula is helping us in solving question number 11 and 13. So question number 11 में आप देख पा रहे हैं cos is getting involved. हमने कुछ देर पहले क्या देखा था, जब हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूले बनाए थे, हमने देखा था कि cos का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा। We saw sin x/x, we saw tan x/x. So cos के लिए अब क्या है, 1 minus cos 5x, 1 minus cos 3x. We need some substitution. So limit x tends to 0. 1 minus cos 5x. हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है 1 minus cos 5x का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा बीच में। 1 minus cos 5x की जगह पे हम पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर 5x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 minus cos 6x की जगह पे हम पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर जस्ट 3x। एज यू कैन सी हमने पहले दो फॉर्मूले वही बनाए थे, 1 minus cos 5x, 1 minus cos 6x. Now this 2 and 2 got cancelled. We have limit x tends to 0. This is sin square 5x/2 whole divided by sin square 3x. और ये जो लिमिट x tends to 0 है, ये हमारा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। Now since we get to see sin is there, हमें नीचे तो x चाहिए। अब now we can see दोनों के पास sin स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, नीचे भी x स्क्वायर और x स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दिया। Now let us segregate the limit. ऊपर लिमिट हमने दिया limit x tends to 0. Can I write this as sin 5x/2 upon x का होल स्क्वायर ऊपर में, नीचे I am writing limit x tends to 0 sin 3x by x का whole square. As you can see, this is what, sin 3x by x का whole square, and what is this, sin 5x/2 by x का whole square. So this is what we have written.
और हमने कुछ देर पहले ये भी देखा था कि हम लिमिट को भी होल स्क्वायर में डाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को यहां पुट कर दिया। So this is whole square, this is also a whole square. Now what we need to see the adjustment part, कि adjustment क्या हो रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं साइन का एंगल है 5x/2, नीचे सिर्फ x है, ये नहीं चलेगा, तो नीचे हमें 5/2 देना था। सो वही 5/2 हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, और वही 5/2 हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया। वही लॉजिक में नीचे वाले को देखो, ये 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तो नीचे के लिए हमें यहाँ 3 दिया, यहाँ पे भी एक 3 देना पड़ेगा, और लिमिट को तो हम चेंज कर ही सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वन कंप्लीट स्टैंडर्ड लिमिट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वंस अगेन अ स्टैंडर्ड लिमिट। सो दोनों हाईलाइटेड पार्ट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1। सो दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, ऊपर में होल स्क्वायर है, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर से होल स्क्वायर है। So this is 25/4, this is 9, answer is 25/36. Question, last question, और this is 13th question जो pending था हमारा, उसको भी हम देखेंगे सेम फॉर्मेट के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। So once again we can see limit x tends to 0, 1 minus cos 4x, 1 minus cos 4x का आंसर हो जाएगा 2 sin square, because of 1 minus cos it came 2 sin square, और 4x का आधा एंगल हो गया 2x, और नीचे है हमारे पास x स्क्वायर ऑलरेडी। जो ये कोएफिशिएंट 2 है ये किसी काम का नहीं है, इट विल कम आउट ऑफ द लिमिट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, आई एम राइटिंग दिस इन द होल स्क्वायर फॉर्म, sin 2x बाय x का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में भी sin स्क्वायर 2x था, नीचे x स्क्वायर था, आई रोट sin 2x बाय x का होल स्क्वायर। और मैं भी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस होल स्क्वायर को हम लिमिट के अंदर ले लेते हैं। सो दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। टाइम टू एनालाइज, एंगल 2x और नीचे x, ये नहीं चलेगा। सो एडजस्टमेंट इज वेरी सिंपल, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, और लिमिट को भी चेंज कर दिया। नाउ इफ वी सी, दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला टिल दिस पॉइंट, स्टैंडर्ड लिमिट आ गया। सो बाहर का 2, this is 1 multiplied by 2, as in this 2 I'm talking about, and then we have a whole square. So this is 2 into 4, the final answer is 13.